नमस्कार, मैं एस के विश्वकर्मा, मैथ्स टीचर। पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया हुआ था इंडेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इंटीग्रेशन किया हुआ था tan x का, cot x का, cosec x का, sec x का। फार्मूले हमने सारे आपको बता दिए थे, एक या दो प्रॉब्लम बताए हुए थे। अब उसके बाद इसी बेस पर NCERT की एक्सरसाइज नंबर 7.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी उसके अच्छे क्वेश्चन हैं हम आपके सामने बोर्ड पे कर रहे हैं। आप कोशिश करिए समझने की। कोई डाउट है तो आप हमारे ईमेल पर भेजकर पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। x कॉमन 1 plus log x dx। by substitution put 1 plus log x is equal to t, differentiation on both sides with respect to x, 1/x dt upon dx, 1/x dx is equal to dt। so integration of 1/x 1 plus log x 1/x dx, 1/x dx replaced by dt, and 1 plus log x is equal to t। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t is log t with mod। हमने आपको पहले बताया था mod लगाना चाहिए log में पॉजिटिव के लिए। बाई सब्स्टिट्यूशन t is equal to 1 plus log x plus c। इंटीग्रल यहाँ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन हमको x के फॉर्म में दिया तो आंसर भी x के फॉर्म में देना है, तो इट इज log 1 plus log x plus c required answer of the question। next question, one upon x minus under root x, 1 upon x minus root x। 1 upon root x can be written as under root x into under root x। so root x common, so root x minus 1 dx। by substitution root x is equal to t, differentiation on both sides with respect to x, dy by dx under root x is equal to dt upon dx। integration of root over x, it means dy by dx x to the power half by using formula x to the power n। so n x n minus 1 1/2 x to the power minus 1/2 1/2 अपॉन रूट एक्स। इसको आप डायरेक्ट लर्न कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बार बार यूज़ होता है। सो 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। सो 1/x dx replaced by 2 dt, 2 constant outside the integration sign, so dt upon t। 1/t it is log mod t plus c, 2 log t, t की वैल्यू देखें रूट ओवर x, रूट ओवर x। इसको आप इस ढंग से कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन पुट रूट ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x टू अंडर रूट x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करने पड़ेंगे। 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt, 2 dt अपॉन t, इट इज 2 log t प्लस c mod t, so 2 log t is equal to root over x minus 1 plus c, the required answer। so put root x minus 1 is equal to t। next question,
e to the power 2x e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x। सिंपल है। अब सोच लीजिए क्या करना चाहिए। बाई सब्स्टिट्यूशन डिनोमिनेटर पुट e to the power 2x e to the power minus 2x is equal to t, differentiation on both sides with respect to x, so dy by dx e to the power 2x e to the power minus 2x dt upon dx e to the power 2x differentiation e to the power 2x into 2 e to the power minus 2x e to the power minus 2x into multiply by constant of the x means minus 2, so dt upon dx 2 common e to the power 2x minus e to the power minus 2x dt upon dx, then e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx is equal to half of dt। पहले आप डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, डिफरेंशिएशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे को। तो e to the power 2x minus e to the power minus 2x dx is equal to half of dt। न्यूमरेटर आप देख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा 1/2 आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन एंड dt अपॉन t, सो 1/2 log mod t plus c 1/2 log t, t means e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus 1/1 plus cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus cot means cos x upon sin x dx, taking LCM sin x multiply by 1 sin x plus cos x dx, then sin x upon sin x plus cos x dx। 1/1 plus cot x 1/1 minus cot x 1/1 plus tan x 1/1 minus tan x, किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट इनटू कॉस अपॉन साइन और साइन अपॉन कॉस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंस ये है कि इसको टी लेते हैं, न्यूमरेटर नहीं आएगा, फिर टी कैसे लें, बाई सब्स्टिट्यूशन करना। देन ट्रिक डिवाइडेड बाई 2 and multiply by 2 sin x upon sin x plus cos x dx। डिनोमिनेटर में देखिए साइन प्लस कॉस है, बाई मेकिंग साइन प्लस कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स साइन एक्स 2 sin x प्लस कॉस एंड माइनस कॉस कैंसिल आउट। ये हमें याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या करना है। इतना याद रखें कि साइन प्लस कॉस है तो यहाँ साइन प्लस कॉस बनाएंगे, साइन माइनस कॉस है तो साइन माइनस कॉस बनाएंगे, कॉस माइनस साइन है तो यहाँ कॉस माइनस साइन बनाएंगे न्यूमरेटर में, उसके हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। देन डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। Separating denominator on both term, sin x plus cos x upon sin x plus cos x is 1. So 1/2 integration of 1 plus sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1
and integration of sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx। चेक कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको रब करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x and integration of this one sin x minus cos x upon sin x plus cos x by substitution, put sin x plus cos x is equal to t, differentiation on both sides with respect to x, differentiation of sin x cos x, differentiation of cos x minus sin x, so dt upon dx। अब यहाँ क्या है, साइन माइनस कॉस, यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन कॉमन, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। बाई सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स ओवर, by substitution sin x minus cos x dx replaced by minus dt upon t, sin x plus cos x is equal to t, so 1 by 2 integration of x plus integration of 1 upon t log t with minus sign, पहले भी माइनस बाहर निकाल सकते हैं, प्लस c, so 1 upon 2 x minus log t, putting the value of t means sin x plus cos x plus c। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चंस आप बना लीजिए। 1 upon 1 plus 10x, 1 upon 1 minus 10x, 1 upon 1 minus cot x, sin x upon sin x plus cos x, cos x upon sin x plus cos x, cos x upon cos x minus sin x dx। ये सारे इसी मेथड से बन जाएंगे, आप करके देखेंगे। साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में ऑलरेडी चेंज है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2। ये आप एक ही तरह के सारे क्वेश्चन मेथड से कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है अलग अलग क्वेश्चन को ट्राई करने की। किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से आप कर लीजिए, मेथड लर्न कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। सोचिए इसमें हमें क्या करना चाहिए। रूट के अंदर जो भी है उसको 10 लेना चाहिए, उसको t लेना चाहिए। रूट के अंदर क्या है, 10 को आप लेंगे t, 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास में नहीं है, तो हमको लाना पड़ेगा सेक स्क्वायर, जैसा भी हमने इस मेथड में किया हुआ था। कुछ अपने मन से भी आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। तो रूट के अंदर जो भी है उसको t ले लीजिए, आंसर आना ही आना है। तो यहाँ पर हमें याद है कि हमें सेक स्क्वायर लाना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो रूट 10x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, देन इट इज़ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर देन सेक स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, 1 cos कैंसिल आउट, देन साइन अपॉन कॉस 10x dx। रूट 10 है, 10 कैन बी रिटर्न एज रूट 10 इंटू रूट 10, 1 रूट 10 कैंसिल आउट, देन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10x dx। बाई सब्स्टिट्यूशन पुट 10x is equal to t, differentiation on both sides with respect to x, sec square x dt upon dx, sec square x dx is equal to dt, so sec square x dx replaced by dt,
अपान अंडर रूट टी. रूट टी मीन्स टी टू द पावर हाफ. आप न्यूमरेटर में ले जाओगे देन टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी. सो टी टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, टी टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन. सो इट इज़ 1 अपान 2 एंड 1 अपान 2 प्लस सी. दिस इज 2 अंडर रूट टी प्लस सी. 2 रूट टी, टी मीन्स 10x प्लस सी. एक अच्छा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपान e टू द पावर 2x प्लस 1 dx. अब डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो आंसर नहीं आएगा, देख लीजिए. इसके पहले हमने बताया था e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपान e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x. लेकिन उसके जैसा है दिख रहा है नहीं, लेकिन कन्वर्ट उसी फॉर्म में करना पड़ेगा. Numerator and denominator both divided by e to the power x. Numerator and denominator both divided by e to the power x. इसको डिवाइड करिए e to the power x से, याद आ जाएगा e to the power x. 1 divided by e to the power x, then e to the power minus x होगा. Denominator divided by e to the power x, तो e to the power x. And 1 divided by e to the power x, so e to the power minus x dx. अब आपका फॉर्म आ गया. इसी फॉर्म को अब आप कर सकते हो. डिनोमिनेटर को टी ले लीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, न्यूमरेटर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. सो बाई सब्स्टिट्यूशन पुट e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू टी. डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x. e टू द पावर माइनस x का क्या होगा, e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस वन. कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो करनी पड़ेगा आपको. दिस इज डी टी अपॉन डी एक्स. तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. देखिए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x डी एक्स रिप्लेस बाय डी टी अपॉन टी. सो लॉग मॉड टी प्लस सी. लॉग मॉड टी मीन्स e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x प्लस सी ओवर. ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर आ गया. मेथड क्या है कि हमको t लेना है, और t किसको लेना है, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो. नहीं है तो बनाना पड़ेगा. इसमें डायरेक्ट नहीं आ रहा था, हमने ट्रिक लगाई. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया. किससे डिवाइड कर दिया, e टू द पावर x से. अगर e टू द पावर 2x से करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर वैसे ही आ जाएगा. तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, a अपान बी प्लस सी ई टू द पावर x. देखिए कैसे कर पाएंगे, कोई आइडिया दिमाग में आ रहा, आप लगा के देखिए 1 मिनट, हम आपको बताते हैं. फिर अगर डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलना, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा. न्यूमरेटर में आना चाहिए e टू द पावर x, वो हमारे पास में नहीं है. इसमें भी आप सेम थिंग, a कांस्टेंट बाद में कॉमन निकालते हैं. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. तो a e टू द पावर माइनस x, b e टू द पावर माइनस x प्लस c. ये इसकी मेथड है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. बाय सब्स्टिट्यूशन पुट e टू द पावर माइनस x, कंप्लीट ले लीजिए, b e टू द पावर माइनस x प्लस c इज इक्वल टू t. होल डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t. डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर माइनस x, कोफिशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई, देन इट इज माइनस 1 plus c constant alone, then 0. So dt upon dx. So minus b e to the power minus x dx is equal to dt.
e to the power minus x dx is equal to minus 1 upon b of dt. By substitution, a is constant outside the integration sign, e to the power minus x dx replaced by minus 1 upon b dt. So minus 1 upon b outside the integration sign, it is dt. डिनोमिनेटर हमने क्या लिया हुआ, b e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी. सो माइनस ए अपान बी लॉग मॉड टी प्लस सी ए अपान बी लॉग टी टी बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी. ये सी अलग है, क्वेश्चन में दिया हुआ था. ये सी कांस्टेंट है. अगर दोनों ब्रैकेट से बाहर होते कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट कर सकते थे, इसमें लेकिन नहीं करेंगे, ये आउटसाइड द मॉड साइन. तो e टू द पावर x का कोई भी क्वेश्चन है, आप ट्रिक देख लीजिए, इस ट्रिक से आंसर आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस e टू द पावर x. ये होमवर्क है, आप करके देखिएगा आपसे आता है या नहीं. मेथड हमने आपको बता दी है, जो भी टिपिकल प्रॉब्लम थे हमने इसमें कर दिए कंप्लीट. आप देख लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का. x प्लस 1 x प्लस लॉग x अपान x dx. By substitution, x plus log x is equal to t. X plus log x is equal to t. Differentiation on both sides with respect to x. Differentiation of x is 1. Log x 1 upon x. dt upon dx. So 1 plus 1 upon x dx is equal to dt. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके रख लिया. आप देखते हैं इस पार्ट में, देखिए x प्लस 1 अपान x इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. एक्स अपान एक्स 1 अपान एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस 1 अपान एक्स. ये देखिए हमने पहले से करके रखा हुआ डिफ्रेंशिएशन में. 1 प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स रिप्लेस बाय डी टी. एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर. टी टू द पावर 2 आपको पता ही है, कर लेते हैं इंटीग्रेशन. टी टू द पावर 3 अपान 3 प्लस सी. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एक्स प्लस लॉग एक्स होल क्यूब अपान 3 प्लस सी. इसको आप चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो समझ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 1 अपान 3 x टू द पावर 5 dx. हमने आपको मेथड दी है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके अंदर जो भी है उसको t ले लें, आंसर आपका बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी. पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी. डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर डी टी अपान डी एक्स. एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 3 ऑफ डी टी. एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर 1 अपान 3. ठीक है, अब ये कितना x टू द पावर 5,
तो x to the power 5 can be written as x to the power 3 into x to the power 2. x to the power 2 dx is equal to 1 upon 3 dt. And x cube convert into t form. x cube is equal to 1 plus t. So x cube is equal to 1 plus t and x square replaced by 1 upon 3 dt. ये रफ स्टेप है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाना था. x cube minus 1 is equal to t means t to the power 1 upon 3. x to the power 5 रफ में स्प्लिट कर लीजिए, x cube रिप्लेस बाय 1 प्लस t एंड x square dx replaced by 1 upon 3 of dt. 1 upon 3 constant outside the integration sign. So 1 upon 3, open the bracket, t to the power 1 upon 3 multiply by 1, t to the power 1 upon 3, t to the power 1 upon 3 multiply by t. So t to the power 1, पावर ऐड हो जाएंगे, देन t to the power 1 upon 3 plus 1, 4 by 3 dt. Then integration with bracket t to the power 1 upon 3 dt, t to the power 4 by 3 dt, 1 upon 3 t to the power n plus 1 upon n plus 1, 4 by 3 upon 4 by 3 and t to the power 4 by 3 plus 1, तो t to the power 7 by 3 upon 7 by 3 plus c. So 1 upon 3, it is 4 by 3, t to the power 4 by 3, 7 by 3, t to the power 7 by 3 plus c. 4 by 3, then it is 3 by 4, 3 by 7, 3 common and cancel, putting the value of t, t means x cube minus 1. आप लास्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर दीजिए, रिक्वायर्ड आंसर. एक बार देख लीजिए, ये स्टेप रफ है, इसको बिल्कुल नहीं करना, हमने आपको समझाने के लिए क्या हुआ है, लिखने की ज़रूरत नहीं. अगर मन में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसकी टी की वैल्यू हमें टी के फॉर्म में निकालना पड़ेगा. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस टी. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी बाई पार्ट. अभी हम फार्मूला नहीं जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके करने की कोशिश मत कीजिएगा, होगा ही नहीं, होगा तो बहुत लेंदी होगा. अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, इनिशियल स्टेज पर आपको सोचना चाहिए कि इसको हम कौन सी ट्रिक लगा दें. ट्रिक एक ही है, जब कभी भी साइन इंटू कॉस हो, जहाँ भी पूरे मैथ्स में, तो साइन इंटू कॉस में आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा. यही इसकी ट्रिक है. 1/2 2 साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx मल्टीप्लाई बाई 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx. जब कभी भी साइन इंटू कॉस है तो एक ही ट्रिक है पूरे कोर्स में, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा. तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx 1/2 2 साइन x cos x sin 2x, it is sin 2 ax प्लस बी dx. डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स, लेकिन डायरेक्ट साइन नहीं है, यहाँ सिंगलेटन होना चाहिए, x अकेला होना चाहिए, t अकेला होना चाहिए. देन बाई सब्स्टिट्यूशन पुट 2ax प्लस बी is equal to t. Differentiation on both sides with respect to x, 2 constant, a constant, differentiation of x is 1.
and constant alone b means 0, so dt upon dx. 2a dx is equal to dt, so dx is equal to 1 upon 2a of dt. ये देखिए 1 upon 2 dx, it means 1 upon 2a, constant outside the integration sign, sin ये देखिए 2 ax plus b is equal to t dt, singleton form. So 1 upon 4a, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, फार्मूला है माइनस cos t plus c, so it is minus 1 upon 4a cos t, t is equal to 2ax plus 2b, t is equal to 2ax plus 2b, and finally plus c ओवर. ये हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के. अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल. सभी को नमस्कार. थैंक यू.